To all of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss multiple choice question on General Financial Rule 2017. It is after amendment. It is part 1. Actually, I have uploaded part 1, but I had given the past data. So you know that in certain areas in general financial rule, it means some amendment made by the government. So basically in part 1 video, it means lots of complaint are there. So just I up to date it, and again you go through the part 1 video, this one. So actually you get the latest data. Actually in which area of GFR already government has amended. Just I up to date this data in part 1 MCQ or General Financial Rules 2017. So for this reason I have mentioned here after amendment. Clear? So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start. Question number 1. The General Financial Rules 2017 came into force with effect from, it is we know that 8th March 2017. Answer is bit B. GFR 2017, it means after 7th Pay Commission. GFR 2017 came into force with effect from 8th March 2017. Answer is bit B. Second question. Dash is the central purchase organization replace Directorate General of Supplies and Disposal. So in amendment already government mentioned that GEM SPV, Government E-Marketplace Special Purpose Vehicle, it replaced DGS&D, Directorate General of Supplies and Disposal. Actually in preceding manner, you know that DGS&D controlled and managed the GEM portal. But now DGS&D replaced by GEM SPV, Government E-Marketplace Special Purpose Vehicle. Actually it is a private limited company, but now government has given the autonomous status. Now it is a non-profit making institution, and basically this one actually organizing and basically control the GEM portal, Government E-Marketplace portal, in place of DGS&D, register the suppliers and check the credentials of the suppliers. Credentials means suppose past experience of the suppliers, whether they deliver the good in time or not. Also detect their manufacturing quality. It means their economical background, everything clear. So now it means GEM portal controlled by GEM SPV instead of DGS&D after amendment. क्लियर? तो आंसर इज बिट डी. इसके ऊपर थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दिया, देख लीजिए. द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल GEM SPV हैज बीन सेट अप to develop, manage and maintain the GEM platform. The Government E-Marketplace Special Purpose Vehicle, a Section 8 non-profit private limited company under the Ministry of Commerce. DGS&D भी Ministry of Commerce के अंदर था. ये भी जो GEM SPV है वो भी Ministry of Commerce के अंदर है. Under the Ministry of Commerce has been incorporated under the Companies Act 2013. इसके ऊपर आपको MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है. टू डेवलप, मैनेज एंड मेंटेन द GEM प्लेटफॉर्म. द GEM SPV would provide an end-to-end online marketplace for central and state government ministries, departments, public sector undertakings, autonomous institutions and local bodies for procurement of common use goods and services in a transparent and efficient manner. With this decision, the company would replace the Directorate General of Supplies and Disposal, which is under the Commerce Ministry. So from this already we have detected that DGS&D replaced by GEM SPV, and now GEM SPV fully control the GEM portal.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डैश विल एंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्यूर्ड थ्रू जेम फॉर द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स एंड ऑल्सो चेक द क्रीडेंशियल ऑफ द सप्लायर्स ऑन जेम। मैं अभी बोल चुका हूँ, जो जेम एसपीवी है बेसिकली इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द जेम प्लेटफॉर्म। So the main it means function of the GEM SPV is periodically making advertisement on some common items, okay, so that government procuring entities, they must know what type of common items available in GEM platform. Now also you know that it is mandatory for the government procuring entities to purchase common items available in GEM portal. Those items are not available, then if they want to purchase from outside, okay, if those items are not available in GEM portal, then in this case basically departments or their subordinate offices, then they, it means by themselves, they register the suppliers and procure the goods from them. But if the goods are available in GEM portal, it is mandatory for the government procuring entities to procure the goods from GEM portal. So it is absolutely it is the main duty of the GEM, it means basically GEM SPV, government e-marketplace special purpose vehicle, who manage the GEM platform. It is the main duty is periodically making advertisement, and next one also check the credentials of the suppliers. Already I have discussed. Credentials means you know that checking everything, the past performance of the suppliers, whether they deliver the goods in time or not. Also checking their manufacturing, it means manufacturing quality, their economical background, everything, and then GEM SPV register the suppliers. So absolutely answer is bit B, GEM SPV. Chalo, question number 4, two statements given. One, common use goods and services available on GEM are required to be procured mandatorily by the government entities through GEM. मैं उसको बोल चुका हूँ, absolutely right है। GEM पोर्टल के ऊपर जो भी कॉमन गुड्स है तो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज के लिए वो मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज टू प्रोक्योर दीज कॉमन गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल। यदि जेम पोर्टल में गुड्स नहीं है तब it means departments and their subordinate offices, they register suppliers and goods it means procure it means from these registered suppliers. बट यदि जेम पोर्टल में कॉमन गुड्स है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर दिस गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, इन केस ए सर्टन आइटम इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल देन गवर्नमेंट एंटिटी प्रोक्योरिंग दिस आइटम थ्रू द लोकल परचेज कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकल परचेज कमेटी आप जानते हो, थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। जेम पोर्टल के आउटसाइड में हम जाएंगे कि विदाउट कोटेशन अप टू 25,000 हम खरीद सकते हैं, मोर देन 25,000 अप टू 2.5 लाख, ये लोकल परचेज कमेटी। लोकल परचेज कमेटी 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। तो इसमें अभी जो अमेंडमेंट में ये इन्फॉर्म किया गया है कि यदि जो आइटम्स जेम पोर्टल में नहीं है एंड वो आइटम्स का जो एस्टिमेट होगा वो मोर देन 25,000 एंड अप टू 2.5 लाख होगा, तब लोकल परचेज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि वो जेम पोर्टल में वो गुड्स नहीं है, वो आइटम्स नहीं है एंड वो गुड्स का जो वर्थ होगा वो मोर देन 25,000 एंड अप टू 2.5 लाख, तब लोकल परचेज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट होगा। दे गो फॉर मार्केट सर्वे एंड दे ब्रिंग कोटेशंस and quotations must be analyzed, their specifications must be checked, okay, then it must be finalized, then the contract given to the supplier, right? तो इसके सेकेंड भी absolutely right है
इनकेस ए सर्टन आइटम, यदि सर्टन आइटम जेम पोर्टल में नहीं है तब, और वो आइटम्स का तो आप लिमिट जानते हो, मोर देन 25,000 अप टू 2.5 लाख लोकल परचेज कमिटी, और मोर देन 2.5 लाख टू 25 लाख लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एंड मोर देन 25 लाख एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जो आउटसाइड ऑफ जेम पोर्टल में है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहां पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट सी। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूल dash of GFR 2017 definition of goods given, absolutely it is 143. You see the general financial rule 143, you can find the definition of goods. थोड़ा मैं उसको क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पर क्या क्या डेफिनेशन ऑफ गुड्स में आता है। अंडर रूल 143, गुड्स इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स, कमोडिटी, लाइवस्टॉक, फर्नीचर, रॉ मटेरियल्स, spares, instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ships, etc. Or some intangible means service, basically services, or intangible products like software, ये services सब है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, पैटेंट्स और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज परचेज्ड और एक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट। बट इसमें एक्सक्लूड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट एक्सक्लूड्स जो डेफिनेशन ऑफ गुड्स में ये नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्या है? बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी, ये गुड्स में इंक्लूड नहीं है। जो जीएफआर रूल 143 है, जो गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है, ये नहीं है। बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी, ये गुड्स डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट वन, द टर्म गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क्स एंड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। अभी आपको क्लियर हो गया, मगर उसमें बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी, ये जो डेफिनेशन ऑफ गुड्स है उसमें इंक्लूड नहीं है, राइट। तो चलेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ये बहुत इजी है। गुड्स डज नॉट इंक्लूड, अभी मैं बताया बुक्स, पब्लिकेशंस एंड पीरियडिकल्स, ये गुड्स डेफिनेशन में नहीं है। अदर चीज है आर्टिकल्स, मटेरियल, कमोडिटीज, लाइफ स्टॉक, फर्नीचर्स, एवरीथिंग अदर है। जो आंसर है बी डी, बुक्स, पब्लिकेशंस एंड पीरियडिकल्स, ये गुड्स का डेफिनेशन में नहीं है। चलो आंसर इज बी डी। चलो नेक्स्ट वन, an authority competent to incur expenditure may sanction the purchase of goods required for use in public service in accordance with dash. ये basically you know that the provisions of the delegation of financial power rules. Answer is B. According to the delegation of financial power rules, head of the office, okay, head of the office is the disbursing authority, right? He or she has the delegation of financial power. Then the head of the office, or basically head of the department, they are having financial power, okay, to choose the goods according to the public interest, okay, and they decide the procurement of goods according to the public interest. So answer is B. The provisions of the delegation of financial power rules, basically in office subordinate offices, subordinate of the department, so आपको head को लेना है, head of the office, और department side में head of the department, राइट। उनके पास जो फाइनेंशियल पावर का जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर उनके पास रहता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर द सप्लायर्स हु हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन आज रिलायबल सोर्सेज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट यूज। B. correct one, no provision is there in GFR 2017, incorrect one, partially correct one, it is correct one, क्योंकि registered supplier the suppliers who have been, जो registered suppliers जिनको एक्चुअली जो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप जानते हो जेम पोर्टल को अभी जेम SPV कंट्रोल करता है, तो वो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल को चेक करके उनको ही रजिस्टर करता है। वही रजिस्टर्ड सप्लायर्स ओनली सेल करेंगे जो कॉमन गुड्स है, राइट। और आउटसाइड में बेसिकली जो गुड्स जेम पोर्टल में नहीं है, तब वो डिपार्टमेंट और ऑफिसेस ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट वो क्या करेंगे, सप्लायर्स को रजिस्टर करेंगे, ओके। उनका जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, आपको मिलेगा रजिस्टर्ड सप्लायर्स का लिस्ट, कि आप जेम पोर्टल में मिलेगा, और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसमें भी जो डिपार्टमेंट, जो ऑफिसेस जो सप्लायर्स को रजिस्टर किया है, उनका लिस्ट वहाँ पर भी मिलेगा, ओके।
तो आंसर इज बीट ए, इट इज करेक्ट वन, राइट, स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर अप्रूव्ड फॉर डैश। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं वो कितने ईयर्स के लिए उनको अप्रूव किया जाता है? बेसिकली आंसर इज बीट सी, ए फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 3 years। ओके, 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स को देख के उनको 1 to 3 years उनको रजिस्टर किया जाता है, फिर उनको रिन्यू किया जाएगा। ओके, 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गुड्स, इसको नहीं भूलना है, राइट। तो आंसर इज बीट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर ऑर्डिनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग। आप जानते हो जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, रजिस्टर्ड सप्लायर्स एक साइड में जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जैसे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में रजिस्टर्ड सप्लायर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर उनको बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड सप्लायर्स बेसिकली जेम पोर्टल में है। ओके, और आउटसाइड में मैं जैसे बताया, जो भी जेम पोर्टल में जो भी गुड्स नहीं है, तब वहाँ पर डिपार्टमेंट एंड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इट मीन्स सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करके उनसे गुड्स प्रोक्योर कर सकते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स जेम पोर्टल में हैं और जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट पास में है कि कंसर्न ऑफिस के पास में है, तो उनको वो जब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करेंगे। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या है ना, जब जो वर्थ ऑफ गुड्स बाय एस्टिमेट ऑफ गुड्स जब मोर देन 2.5 लाख अप टू 25 लाख, मोर देन 2.5 लाख अप टू 25 लाख होगा वर्थ ऑफ गुड्स, तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को बुलाया जाएगा गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो उस समय जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, मगर उनको बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर ऑर्डिनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग बीड सिक्योरिटी, राइट। बीड सिक्योरिटी बेसिकली जो एस्टिमेटेड गुड्स होता है उसका 2 to 5% होता है, बीड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जमा होता है तब बीड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। थोड़ा बीड सिक्योरिटी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। बीड वैलिडिटी पीरियड होता है। जो बीड वैलिडिटी पीरियड जब खत्म हो जाएगा, जिस दिन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, तो उसी डेट से आप जितना जल्दी है, 8 अर्लीस्ट और विद इन 30 days, विद इन 30 days ऑफ द इट मीन्स बीड वैलिडिटी पीरियड। जो बीड वैलिडिटी पीरियड जो खत्म होता है उससे आप 30 days के अंदर उनका जो बीड सिक्योरिटी, जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है, उनको आप रिटर्न कर सकते हो, और जितना जल्दी भी 8 अर्लीस्ट आप कर सकते हो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बीट बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। रजिस्टर्ड सप्लायर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। हाँ, कब रजिस्टर्ड सप्लायर्स को रिमूव किया जाएगा? इफ दे फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन और सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड बाय इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, ये तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। उसको थोड़ा ध्यान देना है। जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड नहीं करेंगे और वो टाइमली गुड डिलीवरी नहीं करेंगे, वो इंफीरियर गुड्स को सप्लाई करेंगे और कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन कोई गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है, ये सब मैटर में उनको रिमूव कर दिया जाता है लिस्ट से। ओके, तो आंसर इज बीट डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 CPPP, इट इज बेसिकली वेरी इजी वन। इट इज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। उसका एक वेबसाइट है www.eprocure.gov.in। ये एक्चुअली CPPP जो है ना, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, यदि कोई डिपार्टमेंट और कोई ऑफिस वो गुड्स को बिडिंग करना चाहता है, तो जो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है इसी साइट में अपलोड करेगा, और जो बिडर्स है इसी साइट से, जो मैं बताया अभी वेबसाइट www.eprocure.gov.in, उसमें जाके वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे फ्रीली, और उसको फिर फिलअप करके जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन डेट है उसके अंदर वो फिर सबमिट करेंगे, राइट। तो ये CPPP। और कुछ समय क्या है ना, डिपार्टमेंट्स और जो ऑफिसेस वो भी जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स उनके पास है वो भी CPPP पोर्टल में वो भी अपलोड करते हैं, तो जनरल पब्लिक को पता चलेगा, ओके, कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, ये पर्टिकुलर ऑफिस का कितना रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और कौन कौन है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू, मैं अभी बताया
लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जब होता है तब रजिस्टर्ड सप्लायर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी जेम पोर्टल में है और जो भी डिपार्टमेंट और ऑफिसेस में जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, विदाउट बीड सिक्योरिटी, कोई बीड सिक्योरिटी वो नहीं देंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इट इज आंसर इज लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी एस्टिमेशन ऑफ गुड्स कितना होगा, मोर देन 2.5 लाख अप टू 25 लाख। जब एस्टिमेशन ऑफ गुड्स होगा तब लिमिटेड इंक्वायरी को जाएंगे। इस केस में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जो जेम पोर्टल में है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न ऑफिस के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, उनको बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा जब वो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। क्लियर? तो आंसर है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, आंसर इज बिट बी। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी परचेज द गुड अप टू डैश थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स ऑन द जेम। अभी जो अमेंडमेंट आया है वो बेसिकली जेम पोर्टल का जो लिमिट है उसके ऊपर आया है। पहले एक्चुअली जो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी परचेज द गुड अप टू डैश थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स, जो भी जेम पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनसे हम खरीद सकते हैं, मगर उसका लिमिट होगा अप टू ₹25,000, मगर पहले ये था 50,000। ओके, अभी अमेंडमेंट होकर ये ₹25,000 हो गया। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और इसको थोड़ा रेक्टिफिकेशन के लिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए मैं फिर क्या किया, उसमें डाटा चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज एक मुझे कमेंट मिला कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा उसको आप अप टू डेट कीजिए। जो पार्ट 1 वीडियो आपका GFR का है तो उसको थोड़ा अप टू डेट कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हो जाओगे कि डाटा करेक्ट नहीं है। तो ये ₹25,000 है ना। यदि वर्थ ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000 होगा तो कोई भी जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स, कोई भी सप्लायर्स जो जेम पोर्टल के ऊपर है उनसे हम प्रोक्यूर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले 50,000 था। राइट, आंसर इज बिट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अबव डैश एंड अप टू डैश गवर्नमेंट बायर्स परचेज थ्रू जेम सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंग्स द एटलीस्ट 3 अवेलेबल सेलर्स। अच्छा, फिर जेम पोर्टल के ऊपर आया तो उसमें पहले क्या था ना, अबव 50,000 अप टू 30 लाख, अबव 50,000 अप टू 30 लाख था कि हम एटलीस्ट 3 सप्लायर्स की, 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को हम डिटेक्ट करेंगे और जो लीस्ट प्राइस में गुड्स को बेचेगा उससे हम गुड्स प्रोक्योर करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटी उससे प्रोक्योर करेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले जो था वो अबव 50,000 अप टू 30 लाख तक था, माने बेसिकली वर्थ ऑफ गुड्स। तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी क्या करता था कि वो एटलीस्ट इट मीन्स 3 सप्लायर्स को वो डिटेक्ट करेगा और जो भी लिस्ट प्राइस में बेचेगा उससे वो प्रोक्योर करेगा। नहीं, तो ये अभी चेंज हो चुका है, ये अभी वो हो गया अबव 25,000 अप टू 5 लाख। जो पहले था अबव 50,000 अप टू 30 लाख, अभी वो रिवाइज होकर अबव 25,000 अप टू 5 लाख हो गया। ओके, जब वर्थ ऑफ गुड्स अबव 25,000 अप टू 5 लाख होगा तब जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो क्या करेगा ना, 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को डिटेक्ट करेगा और उनका प्राइस को एनालाइज करेगा और जो लिस्ट प्राइस में देगा उससे वो प्रोक्योर करेगा। ठीक है, राइट। तो आंसर है बीट ए। ये अमेंडमेंट में मॉडिफाई हुआ है। नेक्स्ट, अबव डैश गवर्नमेंट बायर परचेज थ्रू जेम यूजिंग ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल। ये पहले क्या था, अमेंडमेंट के पहले मोर देन 30 लाख, यदि वर्थ ऑफ गुड्स बाय एस्टिमेशन ऑफ गुड्स मोर देन 30 लाख था तब ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल को जाता था। मगर अभी वो अमेंडमेंट होने के बाद ये हो गया अबव 5 लाख। यदि वर्थ ऑफ गुड्स अबव 5 लाख हो रहा है तब इट मीन्स थ्रू ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल गुड्स प्रोक्योर थ्रू जेम पोर्टल। ये पूरा चेंज हो चुका है। ओके, ये आंसर है बीट सी। तो जेम पोर्टल में एक्चुअली अमेंडमेंट आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है। अप टू 25,000 एनी रजिस्टर्ड सप्लायर, अबव 25,000 अप टू 5 लाख एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स, and out of 3 registered suppliers who want to supply at list price, then government procuring entity can procure the goods actually from it. Next one, above 5 lakh, यदि worth of goods above 5 lakh, then reverse auction tool और जो online बोली होता है ई बिडिंग, ओके, इट इज above 5 lakh। मगर इसमें आपको याद रखना है एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स वही लिमिट अप टू 30 लाख है। एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स ये जो लिमिट है ये लागू होगा, आपको याद रखना है। कभी MCQ क्वेश्चन आएगा
ऑटोमोबाइल सेक्टर को छोड़ के और सब में ये लिमिट लागू होगा, राइट। चलो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 17, परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस। तो आउटसाइड ऑफ द जेम को चलेंगे। विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस हम जानते हैं, और बीड्स अप टू द वैल्यू ऑफ ₹25,000। आंसर इज बिट सी, विदाउट कोटेशन। कोई कोटेशन का जरूरत नहीं है, हम वर्थ ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000 हम प्रोक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमिटी इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। हम जानते हैं, मगर अभी उसमें थोड़ा अमेंडमेंट आया है, पहले ये नहीं था। अभी जो लोकल परचेज कमिटी, इफ द आइटम्स आर नॉट अवेलेबल, इफ द आइटम्स आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल, यदि जेम पोर्टल में जो आइटम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, यदि जेम पोर्टल में जो कॉमन गुड्स है तो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए वो मैंडेटरी है, वो गुड्स को वो प्रोक्योर करेगा जेम पोर्टल से। यदि जो आइटम्स नहीं है जेम पोर्टल में और उसका जो वर्थ है वो मोर देन 25,000 एंड अप टू 2.5 लाख, तब ये तो लिमिट है लोकल परचेज कमेटी के लिए, मोर देन 25,000 अप टू 2.5 लाख। तो जो गुड्स जेम पोर्टल में नहीं है तब लोकल परचेज कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, आप जानते हो। तो जो हेड ऑफ द ऑफिस है उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है वो कमेटी को। वो कमेटी गो टू द मार्केट सर्वे एंड ब्रिंग कोटेशंस ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स एंड इट मस्ट बी एनालाइज्ड। व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एनालाइज? देयर स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी, डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और पास्ट एक्सपीरियंस, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, एवरीथिंग। देन जो बेसिकली जो लिस्ट प्राइस में देता है उससे ये सब चीज़ को एनालाइज करके फिर फाइनली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सप्लायर को। तो ये जो लिमिट है वही है, मगर इसमें आपको जो अमेंडमेंट हुआ है कॉमन चीज, जो आइटम्स जेम पोर्टल में नहीं है और उसका जो गुड्स का वर्थ होगा मोर देन 25,000 अप टू 2.5 लाख, तब लोकल परचेज कमेटी को जाएगा। तो आंसर ऑब्वियसली है अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹2,50,000। आंसर इज बिट डी, राइट। चलो, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। हम जानते हैं कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को कब जाएंगे ना, अबव 2.5 लाख एंड अप टू 25 लाख। आंसर इज बिट बी, अबव 2.5 लाख एंड अप टू ₹25 लाख। मगर इसमें लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या है, जैसे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, जो सपोज कंसर्न डिपार्टमेंट का कि जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा और पूरा एडवर्टाइज किया जाएगा कि कब बिडिंग ओपन होगा, कब बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट होना है, कितना बिड सिक्योरिटी देना है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, और कहाँ कहाँ पर वो अपलोड होगा। जेम पोर्टल में अपलोड होगा, CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अपलोड होगा और उसका खुद का साइट में अपलोड होगा। तब वो बिडर्स क्या करेंगे ना, वो डाउनलोड करेंगे फ्रीली और वो फिलअप करेंगे और जो भी सबमिशन डेट है, जो लास्ट डेट है उसके अंदर वो सबमिट करेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर एक है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, चाहे जेम पोर्टल में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, कि कंसर्न ऑफिस के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, वो बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे, ओके। उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहे कोरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल उनको भेजा जाएगा। अदर बिडर्स वो क्या करेंगे ना, वो जाकर सीधा जो साइट है उसी से वो डाउनलोड करेंगे। मैं अभी साइट बताया, चाहे जेम पोर्टल को जाएंगे, CPPP पोर्टल को जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट को जाएंगे, वहाँ पर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है और एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ से वो फ्रीली डाउनलोड करेंगे। मगर जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको भेजा जाएगा मेल में कि रजिस्टर्ड पोस्ट में, उनको भेजा जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और वो बिड सिक्योरिटी नहीं देंगे, ठीक है। ये हो गया अबव 2.5 लाख एंड अप टू 25 लाख लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ सप्लायर्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3। मोर देन 3, एटलीस्ट 4। मोर देन 3 मीन्स एटलीस्ट 4 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सप्लायर्स मोर देन 3 और क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट 4, ये दे सकता है। तो आंसर इज बिट सी, ठीक है। क्वेश्चन में एटलीस्ट देगा तो 4 देना है और मोर देन देगा तो 3 देना है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, अभी मैं बताया था, इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बी सेंड टू द रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर द गुड्स टू बी परचेज्ड बाय। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजा जाएगा? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजा जाएगा, राइट, कोरियर में, ईमेल में, ऑल ऑफ द अबव। तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से, कोरियर से, ईमेल से उनको भेजा जाएगा।
अदर जो बिडर्स है वो चाहे वो डिपार्टमेंट का वेबसाइट को जाएंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे कि जेम पोर्टल को जाएंगे कि CCCCC पोर्टल को जाएंगे, वहां पर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को वो डाउनलोड करेंगे, राइट, मगर रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भेजा जाएगा। चलो आंसर इज बी डी ऑल ऑफ द अबव। 22 को चलेंगे। इन स्पेशल केस द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज मोर देन ₹25 लाख थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। हम जानते हैं जब प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होगा जिसका वर्थ मोर देन 25 लाख होगा, तो हम बेसिकली गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाता है अबव 25 लाख। मगर कुछ कुछ केस में होता है वर्थ ऑफ गुड्स अबव 25 लाख होता है, फिर भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को प्रीफर करता है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न ऑफिस। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इन अर्जेंट कंडीशन द डिपार्टमेंट डज नॉट वांट टू मेक एडिशनल एक्सपेंडिचर टू प्रोक्योर द गुड्स, ये एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि कुछ कुछ अर्जेंट कंडीशन में डिपार्टमेंट कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं चाहता है, तो उसके वजह से हाँ ठीक है वो मोर देन 25 लाख है वर्थ ऑफ गुड्स, फिर भी वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को प्रीफर करता है इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। कभी कभी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो वो नहीं चाहते हैं कि हाँ वर्थ ऑफ गुड्स मोर देन 25 लाख है मगर वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में उसको प्रोक्योर किया जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट बी। चलो 23 को चलेंगे, बहुत इजी है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू अबव 25 लाख। ओके, अबव 25 लाख देख लीजिए, आंसर बिट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्डिनरीली द टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और अवेलेबिलिटी ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल व्हिच एवर इज लेटर शुड बी, एक्चुअली ये है मिनिमम 3 वीक्स। ओके, मिनिमम 3 वीक्स। जिस डेट में एक्चुअली ऑर्डिनरली टाइम जो बिडिंग अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस डेट में एक्चुअली पब्लिकेशन हुआ बिडिंग का, ओके, और अवेलेबिलिटी ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कहां पर अवेलेबल होगा, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट में होगा, जेम पोर्टल में होगा, CCCCC पोर्टल में होगा। जब अवेलेबिलिटी होगा कि पब्लिकेशन होगा, उसी से मिनिमम 3 वीक्स के अंदर उसको, मिनिमम, उससे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम आपको लेना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 वीक्स आपको लेना है, तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, राइट। तो मिनिमम 3 वीक्स आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 25 को चलेंगे। When the department contemplates obtaining bids from abroad, the minimum period should be kept as dash for both domestic and foreign bidders। यहाँ पर जो डोमेस्टिक फॉरेन बिडर्स के ऊपर, जो डोमेस्टिक बिडर्स है वो एक्चुअली एक एजेंट होता है फॉरेन बिडर्स का। ओके, जो डोमेस्टिक बिडर्स होता है वो एक एजेंट होता है फॉरेन बिडर्स का। और यदि अभी डिपार्टमेंट वो फाइनल कर दिया कि अभी जो बिड्स ऑब्टेन होगा वो अब्रोड से होगा, क्योंकि उसी तरीके का क्वालिटी का गुड अवेलेबल नहीं है। अभी जैसे वैक्सीन, अभी ये पैंडेमिक टाइम में जो कोविड-19 का वैक्सीन, अभी हम सभी स्टेट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी से उसको इट मीन्स इनवाइट किया जाएगा वैक्सीन को। तो जब उसी तरीके जब कोई पर्टिकुलर मटेरियल की कोई पर्टिकुलर कमोडिटी वो सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है, कि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब हम GTE को जाते हैं, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी को, तब हम बिडिंग फ्रॉम अब्रोड। तो उस केस में जो फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर्स तो दीजिए ना, डोमेस्टिक बिडर एक्चुअली वो फॉरेन बिडर का एजेंट होता है, ठीक है। तो अभी जैसे रेड्डी जो लैबोरेटरी है वो फाइजर मेडिसिन अभी प्रोड्यूस करेगा, तो वो एक एजेंट है फाइजर का, राइट। तो ऐसे ही तो यहां पर जो टाइम होगा मैक्स, ये होगा मिनिमम 4 वीक्स। ओके, फॉरेन बिडिंग के लिए मिनिमम 4 वीक्स। तो आंसर इज बिट बी। चलो, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 10% टू डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट 31 दिसंबर 2021 ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। अभी जो गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम में दिया है कि बेसिकली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10% था। आप जानते हो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जिस सप्लायर को फाइनली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ता है। वो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा तो उसका जो बीड सिक्योरिटी है उसको रिटर्न कर दिया जाता है, और वो पूरा जो भी गुड्स डिलीवरी करेगा और जो भी वारंटी और गारंटी पीरियड में वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो सब ऑब्लिगेशन करने के बाद 60 डेज के अंदर उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो भी उसके पास जो ऑब्लिगेशन है
जो भी गुड्स को डिलीवरी करेगा और जो वारंटी गारंटी पीरियड वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये सब होने के बाद आप काउंट करेंगे 60 डेज। जिस डेट में वो ओब्लिगेशन खत्म हुआ उसी से 60 डेज के अंदर उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिटर्न कर दिया जाएगा। और एक मजा बात है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिस सप्लायर को फाइनली कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा, उसका जो बीड सिक्योरिटी, वो जब बीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया था तब बीड सिक्योरिटी दिया था, तब उसका बीड सिक्योरिटी को उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अभी जो पैंडेमिक टाइम में गवर्नमेंट क्या किया, बेसिकली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स। ओके, बेसिकली जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स होता है उसका 5 to 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होता है। ये पैंडेमिक सिचुएशन में, ये फाइनेंशियल क्रंच सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया, 5 to 10% to 3% कर दिया। मगर कब तक? 31 दिसंबर 2021। और इसमें गवर्नमेंट ने मेंशन किया कि इसी पीरियड के अंदर जो भी सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो इसी पीरियड के बाद उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसी पीरियड में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना देगा? 3%। तो उस डेट के बाद 31 दिसंबर 2021 के बाद कोई डिपार्टमेंट उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है वो पर्टिकुलर सप्लायर को, और वो 3% एक्चुअली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा, तो उसको एक्सटेंड नहीं किया। वंस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मीन्स वो 3% ही देगा, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मगर ये जो इंप्लीमेंट होगा अप टू 31 दिसंबर 2021, उसके बाद आज यूजुअल नॉर्मल आ जाएगा 5 to 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो आंसर इज बिट बी। चलो, above 5 lakhs गवर्नमेंट बायर परचेज थ्रू जेम यूजिंग ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल बट एक्सेप्ट द सेक्टर। मैं अभी बताया था कि जो रिवर्स ऑक्शन होता है अभी मोर देन 5 लाख, जो बिफोर अमेंडमेंट क्या था, अबव 30 लाख। मगर जो 30 लाख लिमिट अभी भी कौन सा सेक्टर के लिए है? अभी जो से अमेंडमेंट के बाद अभी हो गया, जैसे वर्थ ऑफ गुड्स, जो कोई डिपार्टमेंट सपोज वो प्रोक्योर करना चाहता है मोर देन 5 लाख वर्थ ऑफ गुड्स जेम पोर्टल से, वो रिवर्स ऑक्शन टूल जो ऑनलाइन बोली में जाएगा, ई बिडिंग में जाएगा। मगर वो कौन से सेक्टर में लागू नहीं है? वो एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर में लागू नहीं है। अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वही लिमिट 30 लाख है जो पुराना था, क्योंकि पहले हम जानते थे जो अमेंडमेंट के पहले वो जो था अबव 30 लाख जब था, वो ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल होगा जब वर्थ ऑफ गुड्स अबव 30 लाख होगा। वही लिमिट अभी है, वही 30 लाख लिमिट है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ओके, राइट आंसर इज बिट बी। चलो, ऑल आइटम्स ऑफ टेक्सटाइल रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इट शैल बी मैंडेटरी टू मेक प्रोक्योरमेंट ऑफ डैश from amongst items of handloom origin for exclusive purchase from KVIC, खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड और हैंडलूम क्लस्टर्स। ये अभी अमेंडमेंट में आया है। तो यहाँ पर जो दिया है कि जो टेक्सटाइल आइटम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टेक्सटाइल आइटम्स प्रोक्योर करता है, और जो टेक्सटाइल आइटम में जो हैंडलूम ओरिजिन आता है, जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स आता है, जो बेसिकली हैंड स्पून की हैंड वेविंग, तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली वो बेसिकली जो एक्सक्लूसिवली किससे खरीदा जाएगा? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अदरवाइज कुछ हैंडलूम क्लस्टर्स। तो एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट 20%। तो क्लियरली ये जो दिया है एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20% जो हैंडलूम ओरिजिन का आइटम्स है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको प्रोक्योर करना चाहता है कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, बट टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिलेटेड टू हैंडलूम्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिलेटेड टू हैंडलूम्स, तो तब क्या होगा ना, एटलीस्ट 20%, 20% से कम नहीं होगा। एटलीस्ट 20% किससे खरीदा जाएगा? KVIC और हैंडलूम क्लस्टर्स। तो ये हैंडलूम क्लस्टर्स थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लीजिए। ऑल आइटम्स ऑफ टेक्सटाइल्स रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इट शैल बी मैंडेटरी टू मेक प्रोक्योरमेंट ऑफ एटलीस्ट 20% फ्रॉम द अमंगस्ट आइटम्स ऑफ हैंडलूम ओरिजिन फॉर एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम KVIC एंड और हैंडलूम क्लस्टर्स सच आज। इसको थोड़ा ध्यान देना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फेडरेशंस, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनीज, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा, इंक्लूडिंग वेवर्स हैविंग पहचान कार्ड्स, ये सब हैंडलूम क्लस्टर्स में आता है, राइट। तो एटलीस्ट 20% जो है हैंडलूम ओरिजिन गुड्स मस्ट बी एक्सक्लूसिवली परचेज फ्रॉम KVIC और सम हैंडलूम क्लस्टर्स, एटलीस्ट 20%। चलो, क्वेश्चन नंबर 29, बीड सिक्योरिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीडर्स। अच्छा, बीड सिक्योरिटी बीडर से लिया जाएगा, एक्सेप्ट किसी से नहीं लिया जाएगा। ये क्लियरली अभी जो अमेंडमेंट में इसमें है दिया गया है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनसे वो उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड सप्लायर्स तो हम जानते हैं वो बीड सिक्योरिटी नहीं देते हैं। और थर्ड जो है अभी अमेंडमेंट में उसको इंक्लूड किया गया है, जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज,
स्टार्टअप्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है वो भी बीट सिक्योरिटी जमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है और उसको DIPP उनको एक्चुअली रिकमेंड करता है। ओके, कुछ फार्म्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में आता है, और वो जब उनका इट मीन्स बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको भी बीट सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो ABC है उनको किसी को बीट सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर्ड मैंडेटोरली थ्रू जेम आज पर। जो जेम पोर्टल है ना, उसके ऊपर जो रूल है 149 है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का रूल 149 वो जेम पोर्टल को डिस्कस किया है। तो अभी जो अमेंडमेंट अब क्लियर हो गए, ये पार्ट को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसमें कुछ पास्ट डाटा था उसको मैं अप टू डेट कर दिया। बेसिकली जेम पोर्टल में जो लिमिट था वो चेंज हो गया और कुछ छोटा मोटा चीज जो चेंज हुआ मैं आपको बताया, राइट। तो उसको आप देख लीजिए, वो वीडियो पड़ा है, अभी भी अराउंड 1000 लोग उसको देख चुके हैं, मगर प्लीज़ उसको मैं अप टू डेट कर दिया और उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और एक बार, राइट। थैंक यू।